دنیا میں مقدر ساز ہے مولا، جیسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا، ایسے پردہ محمد سے سر جو بولا، ہم سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا، سفیر کبریاء حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریاء حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریاء حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، دل سر ہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کا، سنتی ہے جدار خانہ کعبہ، بے قدر زلف کہتے ہیں تیرے عارف ہے جو مولا، نماز پنج گانا کا مزہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں تسبیح لگتا ہے علی کے نام کا نعرہ، کہو مل کر ذرا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، غرور کبریاء حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریاء حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، صلوات۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا باقر اور حسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان ننھے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی
کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گا نہال بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس میں اپنا کلام پیش کریں. تمام حاضرین تمام سامعین کی صحت و سلامتی کے لیے وہ آواز بلند صلوات. اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے. اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے. سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے. سرتاج اوصیا کے عزا کے یہ روز ہے. تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے. زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر. اور ہائے تیغ ظلم کی ضربات پہ وہ پر فوار خون کے زخم جبی سے بہا کیے. سجدے میں آپ ربی الاعلی کہا کیے. سجدے میں آپ ربی الاعلی کہا کیے. اے روزہ دار. صلوات. ماشاءاللہ نہال بھائی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. With this I would like to request Brother Zuriyab to come and deliver his lecture in English. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. We begin first and foremost by expressing our condolences to the mu'mineen mu'minat here today with Sulaiman Zamana on the tragic occasion of the Shahada of Amir al-Mu'mineen. And indeed we are in these days known as Ayam Ali. I'll carry on from where we left yesterday
We focused on this ayah of Surah Anfal, verse number 1. Allah subhanahu wa ta'ala says, they asked you regarding the Anfal, and your answer should be, the Anfal should be for God Himself and His Prophet. And we discussed very briefly yesterday, what do we mean by Anfal? Anfal, in simple terms, is the property or the wealth or the possessions that are left over. So when you have an Islamic state, or you have any state that, for that matter, anything that is to be used by the state would be known as Anfal. In terms of your property, in terms of your rights, if you leave behind property, that's the Anfal of your children. Even if someone leaves behind no inheritors, that then goes to whom? The state. So the state is pivotal in this system of Anfal between the people and the state itself. And we discussed yesterday very briefly that we can take a number of conclusions from this one ayah and relate it to Amir al-Mu'mineen. And inshallah from there we can have lessons which could apply to us in our daily lives. The first lesson we discussed yesterday is the person who takes the Anfal and gives it amongst the people should be just in enough. We gave the example yesterday where Amir al-Mu'mineen, although this ayah mentions it's for Allah and the Prophet, we established that after the Prophet, there needs to be someone who gives out the property in the same manner the Prophet did. Otherwise, this ayah of the Quran would not be intact. Indeed, the Quran is not just meant to be 1400 years ago. It's meant to be a book of guidance till Judgment Day. There needs to be someone there qualified, like the Prophet, who can hand out the property of the people, of the state, between the state and the people in equity. We gave the example yesterday where Amir al-Mu'mineen, even when he's electing his judges, he says, don't go to the court to decide a case if you are hungry. Why? Because if you are hungry and the case is before you, you'll be more concerned about the time than the matter itself. Justice would not be in your mind. Further, if you're hungry and someone tries to bribe you, you're more likely to accept the bribe. And we went further, we provided other examples where Amir al-Mu'mineen himself, a man came to his house one day, Amir al-Mu'mineen is the host, and he's eating food with this man. And as you're eating, you tend to discuss the state of affairs. In our time, we'll discuss football, cricket, boxing, and all these things. He began discussing his personal matter. Oh, Amir al-Mu'mineen, I have a case in court. Can you advise me? Can you help me? Amir al-Mu'mineen stopped him and said, listen, if you are speaking about yourself in the court of law, then you must leave my house now. Why? Because you've entered through those doors as my guest, and I'm your host. But if you're trying to get an unfair advantage in your court case, you're trying to seek extra advice, that needs to be done in the court of law. And there I'll adjudicate between you and the person differently. You can't seek bribes and favors in the court of Amir al-Mu'mineen. The second and third point, and we'll finish with this given the time we have, the Islamic system, or the system in general, needs the Anfal for its own support. This is why Bibi Fatima alayhi salam left behind what? Shila, salawat, Allahumma sallam. Lady Fatima knew this. What did she leave behind for Amir al-Mu'mineen? Fadak. Why did she leave behind Fadak? You see, when she went to the Darbar, she didn't just go to speak about Fadak. She went to speak about the Caliphate. The rightful, qualified candidate should be in power. One of those instances was to do with what? Fadak. What does Fadak mean? It was an area of land which composed many baghs, many trees, many forests, many plantations and dates. So that what? So that when the state or the leader comes into power, they can use these resources in the right manner. What she found instead was, after the Prophet, all the way until the Caliphate of Amir al-Mu'mineen, this bagh was used left, right and center for anything. Indeed, you find in the time of the third Caliph, in the time of Uthman, there were people in positions based on their relationship to the Banu Umayyah. This person is the governor of this city. Why? Because he's my cousin. Can he rule? Does he have the qualifications? No. So why is he in power? Because he's my cousin. That person's the state. He's the head of treasury. So he deals with your taxes and everything. So how is he in power? Has he got a degree in economics and maths and finance? No. So how is he in power? He's my brother, or he's my son. That's why. This is what was happening to the state. Lady Fatima, she knew, and she said, no, Fadak needs to be there for Amir al-Mu'mineen. Which is why in the time of the 8th Imam, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam, Harun al-Rashid said,
O son of the Holy Prophet, tell me which or where is your fadak, and I'll give it back to you. He tried to do this politically. He said, show me on the map where is fadak, and I'll give you it back. Case over. Imam Ali ibn Musa replied, you won't give back fadak to me. He said, why? Test me. He said, if I draw for you on the map, will you give it back? He said, of course I will. Imam Rida drew the border of the land of fadak. It started from Khorasan all the way to Yemen. He said, will you give this back to me now? He said, of course I won't give this back. How is this fadak? Fadak was a small little garden in Medina. You've drawn on the map. The lines start from Khorasan all the way to Yemen. How is this possible? Imam Rida replied, fadak was not a static piece of land. Wherever the Muslim empire grew, how did it grow? It grew because of the finances from fadak. And so wherever you have your Islamic lands, your government, your state, that itself is the state on the land of fadak. Therefore, Imam Ali alayhi salam was the best qualified to use this in power. Which is why we find when he came to power, he not only distributed the wealth equally, but in fact he distributed his wealth as well as his knowledge equally as well. He spoke to people based on their level. We didn't find this beforehand. Which is why you find in the time of Amir al-Mu'mineen, all of these wars happened. Jamal, Siffin, Nahrawan, all these, where were these before? This happened in the time of Amir al-Mu'mineen because justice was back where it should be. Before, like we mentioned, you were getting things based on your blood relations. In the time of Imam Ali, he didn't care. Non-Arab, you were related to him, not related to him. You were given what you were due based on your position. We end with some examples here. A man came to Amir al-Mu'mineen and said, "Oh Ali," and Imam Ali was trying to go for the prayer. Everyone is watching. He tried to delay Amir al-Mu'mineen to go to prayer. He said, "Tell me, I have a question. You said, Saluni, Saluni, Kabdan, Tafkiduni, ask me before you lose me. I have a question." Imam Ali said, "Ask." He said, "Which animals lay eggs? Which animals don't lay eggs?" So someone like me who would say, we will begin counting these animals, right? That's us. This is Amir al-Mu'mineen. He is the door to the city of knowledge. He said, Imam Ali smiled and said, "Those animals whose ears are on the outside of their skull, they don't lay eggs. And those animals whose ears are internal to the brain, to the head, they lay eggs." Today you can verify this. Reptiles have what? Does a snake have ears? No, it does not. Its ears, so to speak, is inside of its skull. It doesn't lay mammals. It lays what? Eggs. Another man came to Amir al-Mu'mineen, and this time these were the Khawarij, those Nasibis who were against Amir al-Mu'mineen. They waited for him to come around the corner, and one by one they jumped out of him. So they were trying to pressure him. But this is again Amir al-Mu'mineen, no ordinary man. One man came and said, "What's better, tell me, wealth or position? Wealth or knowledge?" Amir al-Mu'mineen said, "Knowledge is better than wealth." Why? Because knowledge guards you, whereas you have to guard your wealth. If you lock up your money in a safe, you're constantly thinking about it. Whereas wherever you may be, your knowledge can save you. Another man came forward and said, "Oh Ali, tell me, the same question. What's better, knowledge or wealth?" Imam Ali again said knowledge. He said, "Why?" Imam Ali replied, "Because knowledge is the inheritance of the Anbiya, whereas wealth is the knowledge, is the inheritance of the Taghut, of the oppressors." And they asked the same question 10 times, the narration mentions. Imam Ali replied a new answer 10 times. They said, "Amir al-Mu'mineen, we are now your muhibbeen. We love you. One question we asked, you answered it differently 10 times. Imam Ali said, "Is that it?" He said, "What do you mean?" Imam Ali said, "By Allah, if you asked me this one question until Judgment Day, every time I would give you a new answer." This is Amir al-Mu'mineen. Another man came up to him and said, "Oh Ali, tell me, what is that part of earth where the sun hit it once, and until Judgment Day, the sun will never touch that land again?" Imam Ali smiled. He said, when Nabi Musa alayhi salam struck his staff on the ground, the river parted into two. That land beneath the river, the sun touched it once, and when the river came back until Judgment Day, the sun will never touch that piece of land again. We finish on this last example. 2 women came to Amir al-Mu'mineen, again in Kufa, and they said, "Oh Ali, adjudicate for us. I say this is my son. This other lady says, no, this is my son."
How do we prove whose son this is? Imam Ali said, no problem. Kambar, bring me my sword. I'll cut this boy into 2 pieces. You can take 1/2. You can take 1/2. The real mother, when she heard this, said, no, I can't let my son be cut into pieces. Let the other lady take her. Imam Ali said, that's the real mother. He cannot bear to see her son being cut into many pieces. Inshallah, in the nights to come, we'll continue further and see some of the traits of Amir al-Mu'mineen further in his equity, in his dealing of the Anfal. But we finish with these words. Like we said, Imam Ali is without a doubt one of the most Mazloom Imams. May Allah allow all of us to go to Karbala, to Kufa, to Sham. When you go to Karbala, there are many maqamats there. You see, when you have a maqtool, there's always a qatlgah for that maqtool. You go to Kufa, you can see the place where Imam Ali was struck. When you go to Karbala, you see the qatlgah of Imam Hussein. You see the maqam of Ali Akbar. And you think, how did Imam Hussein take his son from here all the way to the Khaymabad? You walk further, you see the qatlgah or the maqam of Ali Asghar. And you imagine how Imam Hussein carried that 6-month-old baby. When you go to Medina, where would the qatlgah of Bibi Fatima be? There is no qatlgah there. In the time of Imam Ali, it was her own door. And so every time Amir al-Mu'mineen would go through his house, he would imagine, this is where my Fatima was slapped. This is where my Fatima was bruised and hurt. Which is why when Amir al-Mu'mineen, many years after Lady Fatima had died, he left his beard go white. One of his companions said, Amir al-Mu'mineen, why don't you color your beard? It's been many years now, you're not even that old. Imam Ali said, don't you know, I am still crying over what's happened to Fatima. With this in mind, on a night like this, the doctor came to see Amir al-Mu'mineen. He said, the poison has reached his skull now. It's seeped into the brain. If you want to alleviate the consequences of this poison, bring him some milk. This news spread around the city of Kufa. And so there was a knock on Imam Hassan's door. Imam Hassan opened. What does he see? Many young yateems standing with their bowls of milk, saying, unless our father has this milk, we won't be drinking any milk. I would say, Amir al-Mu'mineen, this is the city of Kufa. All of these yateems are there for you, because you are their father. There was this same city of Kufa, but this time it's your Sakina, it's your Zainab, your Kulthum, who are walking through it as yateems, as asirs, but there's no one there to give them water. One lady by the name of Habiba says, I saw Sakina and she was thirsty, so I approached her with some water and I said, drink this water, but you must pray for me after this. Bibi Zainab heard this. She said, no, answer her prayers first, then drink the water. She said, my first dua is this: may my children never become yateem like how you have become yateem. Sakina raised her hands to the sky. Oh Allah, like how we have been made yateem, may her children never be made yateem. She said, my second and final dua is this: pray for my master Hussein, pray for my master Zainab and Abbas in Medina. Lady Zainab heard this. She said, if you could see your Zainab, would you recognize her? She said, of course I would. Bibi Zainab showed her her face. She said, oh Habiba, it's me Zainab, but you don't recognize me. The daughters and the children of Imam Ali are walking through the bazaars of Kufa. The daughters and the children of Imam Ali are walking through the bazaars of Kufa. Ala la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Imam Ali, for the sake of his justice, to accept our humble offering, to forgive us our sins, and to allow us to be with Amir al-Mu'mineen fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah. For the love of Amir al-Mu'mineen, we recite aloud salawat. salli ala Muhammad. जज़ाकल्लाह ब्रदर ज़ुरियाब, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। इसके साथ ही बिला किसी तवक्कुफ़ के मैं दावत खिताब देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अब्बास आबदी साहब को कि वो जलवा अफरोज़ मिंबर हो। नाराए तकबीर। नारे के साथ साथ कोशिश करें कि मिंबर के करीब आ जाए सारे मोमिनीन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, رحم الله عبدا من قرأ الفاتحة. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خير بريته واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عزیزان گرامی، یہ راتیں بہت اہم اور بہت ہی زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں. ان راتوں میں قرآن صامت کا نزول ہے تو قرآن ناطق کا عروج. ایک قرآن کے آنے کی رات ہے تو دوسرے قرآن کے جانے کی رات. دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہیں اور ہم سب کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ کس موضوع پر گفتگو کروں تو اس سے کوئی اور بہتر موضوع نگاہوں میں نہیں آیا کہ ہم قرآن کی بھی بات کریں اور علی قرآن صامت کی بھی بات کریں، ناطق کی بھی بات. ایک جو کاغذ میں بند ہے اس قرآن کی بھی بات کریں اور ایک جو قرآن مجسم ہے اس کی بھی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے فضائل جو بیان کیے ہیں، مختلف نسبتوں کا مولا کائنات کے ساتھ سلسلے کو جوڑ کے مختلف فضائل کو اجاگر فرمایا. غور کریں گے تو بات واضح ہوگی. یقیناً افطار سے پہلے مجلس پڑھنا مشکل تھا، افطار کے بعد مجلس سننا مشکل ہے، کیونکہ دو چیزوں سے انسان ڈھیر ہو جاتا ہے. ایک بندوق کی گولی اور دوسرے افطاری. آدمی میں پھر سکت نہیں رہتی، ذہن کام نہیں کرتا، توجہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مگر مولا کائنات کی مجلس ذکر اس کا ہے کہ جو
कमज़ोर से कमज़ोर को भी शहज़ोर बना देता है। ज़िक्र उसका है कि जिस ज़िक्र के अंदर फिर कोई सुस्ती नहीं होती, चुस्ती ही चुस्ती पैदा हो जाती है। इसलिए उसी के नाम की बरकत से हम चाहेंगे कि आप तवज्जो हमारे साथ रखें, तो यकीनन हम इस मौजू पर उसका जो हक़ है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। मगर ये सिलसिला दो तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है। हम आँख बंद करके मजलिस पढ़ लें, टीवी पर भी तन्हाई में अकेले में कैमरे के सामने पढ़ने की आदत है, मगर आप जब हमारे सामने हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ से हमारी कोशिश होगी कि पैगाम को किसी हद तक पूरी अमानतदारी से आप तक पहुंचाएं, तो आपकी भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उस पैगाम को रिसीव करें, उसको ज़ाया होने ना दें। तैयार हैं? सब मिलकर रूह अफ़ज़ा सलवात पढ़ दें, मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब इस नारे के बाद कोई सोने की कोशिश नहीं करेगा, बहुत ही ज्यादा कोई गए गुजरा होगा तो सोएगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको न सोने दिया जाए ना गालिब आने दिया जाए नींद को आपके ऊपर। तवज्जो कीजिएगा, मौजू क्या आपने रखा। चूंकि इन रातों में एक कुरान का नुज़ूल है, एक कुरान का उरूज है, हम दोनों की बात करें। सरकार दो आलम ने मौला कायनात के लिए निस्बतों को वाज़ेह किया, मुख्तलिफ फ़ज़ाइल के उजागर करने के लिए। एक निस्बत अपनी ज़ात से दी, फरमाया अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद। पहली दफ़ा सुन रहे आप हदीस को, शायद आपने सुना होगा, मगर इस पर तवज्जो कीजिएगा। क्या फरमाया सरकार दो आलम ने? फरमाया अली आपकी मेरे साथ वही निस्बत है जो निस्बत सर की तन से हुआ करती है। आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो आपकी फोटो वो तलब करते हैं, तो आपकी फोटो जो मांगते हैं तो आपकी टांगों की नहीं मांगते, आपके शिकम मुबारक की फोटो नहीं मांगते, आपके सीने की फोटो नहीं मांगते, आपके हाथों की नहीं मांगते। कहते हैं आप अपने फेस की फोटो भेजें, क्योंकि आपकी असल शनाख्त बाकी किसी जिस्म के आज़ा से नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी शनाख्त और आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके चेहरे से होती है। सरकार क्या फरमा रहे हैं? या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति रास मिनल जसद। पूरी कायनात में जितने मेरे कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले, मेरी रिसालत और नबूवत का इकरार करने वाले, बार बार मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना नबी तस्लीम करने वाले, रसूल तस्लीम करने वाले, जान लें कि मेरी नबूवत और रिसालत को पहचानना हो, मेरी ज़ात को पहचानना हो, मेरे वजूद को पहचानना हो, मेरी हकीकत को दर्क करना हो, तो खाली अली के अलावा देखोगे तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए कि अली की निस्बत मेरे साथ वैसे ही है जैसे चेहरे की जिस्म के साथ होती है। अली है तो मेरी पहचान है, और अगर अली नहीं है तो मेरी पहचान भी नहीं है। यानी जब मौला कायनात की हकीकत ज़ाती का तज़किरा करना चाहा तो फरमाया अली की मिसाल मेरे सर की तन से जो निस्बत है उस निस्बत से तुम समझो। और जहाँ जानशीनी और अपने बाद के सिलसिले को वाज़ेह करना था, फरमाया अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा। हारून जैसे मूसा के वसी, जानशीन, वारिस, वजीर करार पाए, ऐ अली तुम मेरे वारिस हो, मेरे जानशीन हो, मेरे वसी हो, और मेरे बाद इस पूरी कायनात में तुम ही हो जो पूरे निज़ाम इस्लामी को आगे लेके जाने वाले हो। तुम ही हो कायनात में जो रहबरी करने के लिए चुने गए हो। ये इस फजीलत को बयान करने के लिए निस्बत बता। जब लोगों ने सवाल उठाए इस तरह के सवाल कि अगर आपको हुकूमत ना मिली, आपको खिलाफत ना मिली, तो फिर क्या होगा आपका, तो सरकार ने पहले ही बता दिया
कि या अली अंत बिमंजिलतिल काबा, ए अली आपकी मिसाल, आपकी मंजिलत काबे जैसी है, इसलिए कि दुनिया को काबे की तरफ आना है, काबे को दुनिया की तरफ नहीं जाना है। और फिर हकीकत ज़ात मौलाए कायनात को मजीद समझाने के लिए फरमाया, जहां कहीं कोई कंफ्यूज हो जाता है, जब देखता है कि अली के मुकाबिल में कुछ बड़े बड़े नामवर आ गए हैं, तो उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि मैं किसका साथ दूं किसका ना दूं। कभी कोई ऐसी शख्सियत अली के मुकाबिल में है जो सहाबा में है, नामवर है, कभी अज़वाज रसूल से है और वो भी नामवर है, कोई एक उम्मुल मोमिनीन बनकर आई है और इधर अमीरुल मोमिनीन है, कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने पहले ही वाज़े कर दिया कि तुम लोगों को देखकर नहीं समझ सकते हो कि कौन हक पर है कौन नहीं है, इसलिए कि मैं पहले ही डिक्लेयर करके जा रहा हूं, अलीयुन मअल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ है और हक भी अली के साथ है। ये बात नहीं है कि अली हमेशा हक के साथ होंगे, नहीं, हक को भी चाहिए कि हमेशा अली के साथ रहे। यानी इससे बेहतर और क्या सरकार फरमा सकते थे कि जहां देखो अली के मुकाबिल में कोई है तो फौरन कहो वो बातिल है, अली के मुकाबिल में गलत है, अली के मुकाबिल में जो भी आए गुमराह है, अली के मुकाबिल में जो आए बातिल है, क्योंकि अली हक है, सरापा हक है, हक अली के साथ है। ठीक, मंजिलतों को वाज़े करने के लिए एक मकाम पर यह भी फरमाया, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअ अली, अली कुरान के साथ है और कुरान भी कहिए अली के साथ। यानी सिंपल सादी जबान में सरकार ने ये फरमाया कि जहां कुरान ही कुरान, कुरान ही कुरान, कुरान ही कुरान हो और वहां अली ना हो, है। अब हज पे जाते हैं, लाखों की तादाद में बहुत बड़ी प्रेस है, वहां कुरान छपते हैं, कुरान को प्रिंट करके हाजियों के हवाले मुफ्त में दिया जाता है, तोहफे में दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये सारे कुरान कागजी हैं, अगर वहां अली नहीं है तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, और जहां अली होगा कुरान खुद ब खुद उसके साथ है ना। तो ये जो मंजिलत है वो इन रातों के लिए हमने चुना है। क्या मंजिलत? कुरान और अली, ये हमारा मौजू है। इसके लिए सुनने को अब तैयार होंगे, तैयार है ना? हमें हुक्म है कि कुरान से भी तमस्सुक करें और फिर अहले बैत से भी, और जाहिर सी बात है अहले बैत में जो नुमाया शख्सियत है वो मौला कायनात की। चल रहे मेरे साथ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इनके साथ तमस्सुक कैसे हो ये सवाल है, मगर उससे पहले इन दो का जो रिश्ता है वो क्या है? अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, कुरान में और अली में क्या मुमासिलत है? कभी गौर किया आपने? गौर से सुनिएगा। अल्लाह का ये कलाम है और रसूल अकरम का सबसे बड़ा मौजूजा है। सबसे बड़ा क्या है? कहिए, सबसे बड़ा क्या है? मौजूजा है। यानी चांद के दो टुकड़े करने से भी बड़ा मौजूजा, जी हाँ। सूरज पलटाने से भी बड़ा मौजूजा, जी हाँ। दरख्त से कलमा पढ़वाने से भी बड़ा मौजूजा, जी हाँ। मुर्दे को जिंदा करने से भी बड़ा मौजूजा, जी हाँ। ये सारे मौजूजे हैं सरकार दो आलम के, मगर उन तमाम मौजूदात में सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? कहिए, कुरान मजीद। और आपके हाथों में है और आप उस मौजूदे को रखते हुए भी कंगाल हैं। अच्छी बात रही है। मुसलमानों को कुरान के होते हुए क्या किसी की मदद की जरूरत है? हकीकत यह कि नहीं होने चाहिए। किसी भी मुसलमान को किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। कुरान जो उनके दरमियान,
اب اس کی موجود नुमाई को कभी हमने दर्क ही नहीं किया, उसकी कदर ही नहीं की। बचपन से कहा गया कुरान को पढ़ना है, हमने पढ़ लिया। कुरान को अपने घर में रखना है बरकतों के लिए, हमने रख लिया। कुरान अगर कोई मर जाता है तो उस पर पढ़ना है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान को हमने जहेज में देने के लिए रख लिया। कुरान को हमने अपने घर की बरकत के लिए ताक में रख लिया। कुरान को अपने घर में, हत्ता कभी कभी कुछ लोगों ने एक और रस्म को भी अपना लिया कि जब कोई मुसाफिर घर से निकले तो कुरान के उसके ऊपर साया दो, कुरान से उसको फायदा पहुंचेगा। हमने ये ज़ाहिरी छोटी छोटी चीज़ों के फ़ायदों की तरफ तवज्जो की, मगर हकीकत में नहीं जाना कि ये कुरान मौजूदा है तो कैसे मौजूदा है, क्या मौजूद नवाई इसके अंदर है, और हम कैसे इस मौजूदे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कभी सोचा आपने, कभी इस पर गौर किया आपने? माह मुबारक रमज़ान तो कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है ना, ये रबी कुरान है, मौसम बहार कुरानी है। माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसकी अल्लाह ने डेफिनेशन ही ये बताई है कि ये वो महीना है कि जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। हमने कभी गौर किया इस पर, ये कुरान क्या है? देखिए, कुरान मजीद जो हमारे दरमियान में है, आपके हाथों में है, आपके घरों में है और आपके साथ साथ है, इस तरह देखें कि ये सबसे बड़ा मौजूदा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बना के भेजा। और ये अभी ये मौजूदा है, ख़त्म नहीं हुआ। ये रसूल अकरम के ही हाथों में मौजूदा नहीं है, ये आपके हाथों में भी मौजूदा है। इसकी मौजूद नुमाई कभी ख़त्म नहीं होती। क़यामत के दिन भी मौजूद नुमाई इसकी ज़ाहिर होगी और उसकी मौजूद नुमाई कोई कमी नहीं आएगी। मगर कभी हमने दर्क किया कि ये मौजूदा इसको कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहाँ से कहते हैं, क्या बात है इसके अंदर? तो तवज्जो सुनिएगा, पूरी तवज्जो सुनिएगा। मौजूदा का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजूदा, मीम आइन जीम जे और है, मौजूदा। मौजूदा कहते हैं ऐसे काम को जिसके अंजाम देने से सारी मखलूक आजिज आ जाए। अज्ज़ो नातवानी से मौजूदा है, कोई भी उस जैसा ना बना सके, उसको क्या कहते हैं? कहिए, मौजूदा। मौजूदे और जादू में बहुत फर्क है, उस पर हम नहीं छेड़ने के, उस पर नहीं जाते, क्योंकि वो उसके लिए पूरा एक अशरा चाहिए। अब हम एक मजलिस के अंदर क्या क्या मौजूदात को पेश करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। मौजूदा किसे कहते हैं जनाब? वो काम कि जिसको अंजाम देने से सारी मखलूक क्या आ जाए? आजिज आ जाए, ये मौजूदा है। तो अब ये कुरान मजीद को अल्लाह ने सबसे बड़ा मौजूदा करार दिया। किस तरह करार दिया? अरब की दुनिया उस वक्त फसाहत और बलागत में सबसे अपने आप को टॉप समझती थी और समझती है अभी तक। और आपको मालूम है अरब को अरब क्यों कहते हैं? अरब का मतलब है समझदार। और अरब के अंदर सोच अपनी उन्होंने ये बना ली थी कि जो अरबी नहीं है वो सारे के सारे दुनिया के इंसान अजमी है, अजमी है। यही फर्क है ना, अरब और अजम। हम कहते हैं, हम भी आसानी से उस लफ्ज को दोहरा देते हैं, जबकि वो हमारी तौहीन है, हमारी तौहीन है, हमारी तारीफ नहीं है। अरब और अजम, अजम हमें कहा गया, अजम किस लिए कहा गया? अजम कहते हैं उसको कि जो गूंगा है। आप देख रहे हैं, जो साहिब फन है, जो साहिब हुनर है, जो साहिब कमाल है, जो साहिब जबान है, जो साहिब बयान है, उसको अरब कहते हैं। जो गूंगा है, कम ज़हीन है, कुन ज़हीन है, उसको कहते हैं अजम। और हमें कह दिया अजम। हमें से मुराद खाली पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, टोटल उनकी निगाह में अंग्रेज भी अजमी है, यानी गूंगे हैं, सब गूंगे हैं, सिर्फ वही जबान वाले हैं। इतना अपनी जबान पर उनको नाज था। चल रहे मेरे साथ के नहीं चल रहे? उन्होंने अपनी फसाहत और बलागत को और अपनी जबान और उसकी ग्रामर को और अपनी उस बयान और तबीयन और अंदाज़े बयान को इस कदर उरूज दे रखा था कि पूरी कायनात के इंसानों को उन्होंने क्या नाम दिया? गूंगा। ठीक ऐसे में अल्लाह ने कहा जबान तुम्हारी होगी, जबान तुम्हारी होगी,
हुरूफ भी तुम्हारे होंगे, लफ्ज भी तुम्हारे होंगे, मगर कलाम ऐसा होगा कि उसके आगे तुम सारे के सारे अरब मजबूर हो जाओगे, आजिज आ जाओगे, उस एक आयत के भी जवाब को पेश नहीं कर सकते। तवज्जो है? हमारे लिए वो चैलेंज बनकर नहीं आया, जो फसाहत और बलागत के अपने आप को सूरमा समझते थे, उनके सामने ये मौजूदा बनकर है। जवाब दो। अब आइए सूरह इसरा की वो आयत की जिसकी तिलावत का शरफ हमने हासिल किया। सूरह बनी इसराइल भी उसको कहते हैं। आयत नंबर 88 है। कौल, ऐ हबीब कह दीजिए इन्हीं लोगों से जो आपको मानते नहीं, कहते हैं हम अपने खुदाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये आकर के एक ऐसे खुदा की बात कर रहा है, वो भी एक खुदा की बात कर रहा है कि जो दिखाई भी नहीं देता, जबकि हमारे एक से कई खुदा हैं और फिर कई खुदा सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, और हमें दिखाई देने वाले साफ साफ नजर आने वाले खुदा को छोड़ने का हुक्म दे रहा है, और उस खुदा को मानने की बात कर रहा है कि जो दिखाई नहीं दे रहा। हम नहीं मानते, सारे इनकार करने वाले थे ना। इनकार करने वालों से कहा कि चलो तुम इनकार करते हो, हम तुम्हारे सामने एक चैलेंज रखते हैं। बोल, कह दीजिए लइन इस्तमातिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यातूना बिमिथलि, अगर तुम सारे अरब मिल करके नहीं, सारे इंसान प्लस सारे जिन सारे इंसान मिल करके कोशिश करें कि कुरान जैसा कोई कलाम पेश करें, तो ला यातूना बिमिथलिही, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकेंगे। वलौ कान बादुहुम लिबादिन दहीरा, चाहे वो एक दूसरे के पुष्टिबान मददगार क्यों ना हो जाए। पहले तो जिन और इंस में कोई दोस्ती होती नहीं है, आपस में कभी जिन और इंस मिलकर के कोई काम करते भी नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। जिन को इंसान देख ले तो उसी वक्त हाथ फेल हो जाए उसका, और अगर इंसान को जिन सही मानों में समझ ले उसका बेड़ा गर्क हो जाए। ये दोनों अलग अलग मखलूक खुदा है, मगर अल्लाह कहता है इन दोनों में भी इत्तेहाद हो जाए, इत्तेफाक हो जाए, दोनों मिल करके चाहें कि कुरान जैसी कोई किताब पेश करें तो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकेंगे। कुरान में क्या है? वही अरबी जबान के 28 हुरूफ है टोटल। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक जितने भी हैं वो सारे के सारे टोटल कितने हुरूफ से बने? कहिए 28 अल्फाबेट्स, अलिफ बा ता से या तक 28 हुरूफ से अल्लाह ने 78,000 लफ्ज बनाए। कुरान मजीद में कितने लफ्ज हैं? 78,000, 78,000 वर्ड्स इन द होली कुरान। 78,000 वर्ड्स को अल्लाह ने मिला करके 6,236 आयतों में डाल दिया। 28 हुरूफ है, जबान भी उनकी है, उन्हीं हुरूफ से अल्लाह ने 78,000 लफ्ज बनाए। 78,000 लफ्जों को 6,236 आयतों में जुमलों में ढाला, और इन जुमलों को अल्लाह ने, तवज्जो सुनिएगा, 114 चैप्टर्स में तकसीम कर दिया। कितने चैप्टर्स? 114 चैप्टर्स। और उसके बाद उन चैप्टर्स को, उन सूरों को अल्लाह ने 30 अज्जा में तकसीम करके एक मुकम्मल कुरान किताब खुदा बनकर आपकी हिदायत का सरचश्मा बना करके आपके सामने चैलेंज के तौर पर रख दिया। लिया हो जवाब उसका। और खाली यही नहीं, अल्लाह को मालूम था ना मौजूजा कुरान का मजीद वाज़ेह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे सूरह हूद में फरमाया कि अगर पूरे कुरान का 114 सूरतों का जवाब नहीं ला सकते, कोई बात नहीं कि तुम नहीं ला सकते। क्या करो? फातू बिअश्र सूअरिन मुफ्तरियात, सूरह हूद, इसमें से सिर्फ 10 सूरतों को जवाब लिया, 10 चैप्टर्स का।
10 chapters out of 114 chapters. ले आओ, हम तुम्हारी बात तस्लीम करेंगे, तुम्हारे बुतखाने आबाद और रसूलुल्लाह की तबलीग खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। रसूलुल्लाह को फिर बोलने का हक नहीं होगा, ये खुदा की तरफ आओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहो अल्लाह की इबादत ही करनी चाहिए, किसी की नहीं। ये सारी बातें खत्म हो जाएगी, सारे दीन की बातें खत्म। तुम्हारे बुतखाने आबाद, ये अच्छा काम था ना, बहुत सिंपल था ना। तो सारे फसी और बलीग जितने भी अरब थे सब जमा होते और कोशिश करते कि 10 आयतें 10 सूरह जो है वो लिख करके तैयार करके लाते। देखो भाई हमने पेश कर दिया, उसके जैसा ही कलाम है, उसके अंदर वही गिराई है, वही गहराई है, वही जज़ाबियत है, वही माने हैं, वही उसके पुरमानों से भरे वो आयात है, पेश कर दो। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? वो बेवकूफ तो नहीं थे ना, ये तो कोई बात नहीं, हम भी कोशिश करेंगे। कोशिश करते थे, पूरी एक टीम बनाई, पूरी एक शूरा बनाई और बेहतरीन शायर इकट्ठा हुए, बेहतरीन अदीब इकट्ठा हुए, जितने उनके अंदर जबान के प्रोफेसर थे सारे के सारे इकट्ठा हुए, ग्रामर में जो एक्सपर्ट थे उन सबको इकट्ठा कर दिया गया। सब ने कोशिश की, जुमला एक जुमले के मुकाबिल में बनाते, फिर पढ़ते, आपस में कहते ये कहां और वो कहां, इसके अंदर वो बात नहीं जो उसके अंदर है, उस जैसा कलाम कैसे बना सकते हैं? नहीं कर सके तो अल्लाह ने कहा एक और हमें तुम्हें चांस देते हैं, चैलेंज, और तुम्हें और कंसेशन देते हैं और डिस्काउंट देते हैं। 10 नहीं ला सकते, फातू बे सूरत मिसले मिन मिसले, एक सूरा पेश कर दो, और वो भी बहुत बड़ा सूरा, सूरह बकरा नहीं, सबसे छोटा सूरा, 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरह कौसर जैसा कोई सूरा पेश कर। अब मेरे साथ चल रहे कि नहीं चल रहे आप लोग? एक छोटी सी सूरज, छोटा सा सूरज, जिसे सूरह कौसर ले आओ। अल्लाह को मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते, मजीद डिस्काउंट दिया, फलयातु बिहदीसिन, एक आयत ही का तो जवाब दिया। 6236 आयतों में से एक आयत ही की जैसी कोई आयत बना कर ले आओ। कोशिश करते रहे, आजिज आते रहे, कोशिश करते रहे, बेबस होते रहे। अल्लाह ने कहा देखो ये मौजूदा हमारा और ये जिंदा है, और खाली तुम्हारे जमाने के लोगों के लिए नहीं है, आज के तुम्हारे प्रोफेसर फसीह बलीग शायरों के सामने नहीं है, बल्कि कयामत तक के लिए कुरान मजीद में ये चैलेंज मौजूद होगा। जब भी किसी को इस्लाम के खिलाफ कोशिश करनी होगी, वो कुछ ना करे, आए आकर के इन सूरों का जवाब ले आए, एक आयत का जवाब पेश कर दे। ये सारी दुनिया की ताकतें जो मिल करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, तुम कुरान को जला तो सकते हो मगर उसकी एक आयत जैसी आयत नहीं बना सकते। टिश्यू टिश्यू अब जुमला सुनिए पूरी तवज्जो से। अरबों ने, सारे फसीह बलीग लोगों ने मिलकर के कोशिश की, एक आयत का भी जवाब नहीं ला सके, और ये चैलेंज काफी देर तक सूरह कौसर की शक्ल में खाने काबा की दीवार पर टांग दिया गया था कि तुम पढ़ते जाओ, कोशिश करते जाओ, पढ़ते जाओ, तलाश करते जाओ और देखो कि क्या तुम बना सकते हो कि नहीं बना सकते। जब वो कुछ ना कर सके तो जंग के लिए आ गए, तलवार लेकर आ गए, खंजर लेकर आ गए। मालूम यह हुआ कि जितनी जंगें मुसलमानों के खिलाफ काफिरों ने लड़ी है, वो सारी की सारी जंगें इस बात पर थी कि हर जंग में वो बता रहे थे कि कुछ भी हो, हम कुरान के जैसा कुरान नहीं बना सकते। गोया वो जंग करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपनी आजिजी को बताने के लिए आए थे कि वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट कुरान। कुरान मौजूदा है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? कुरान अली के साथ, अली भी कुरान के साथ, यानी जैसे कुरान का कोई जवाब नहीं ला सकता,
वैसे मेरे मौला अली का भी कोई जवाब नहीं ला सकता। अहले बैत मजमूई तौर पर मौजूदा नहीं है, कुरान मजमूई तौर पर मौजूदा नहीं है, बल्कि कुरान की एक एक आयत मौजूदा है, यानी अहले बैत की एक एक फर्द मौजूदा है। कुरान को और अली को साथ इस तरह देखो, अली का भी जवाब नहीं, कहिए, कुरान का भी जवाब नहीं। अली का क्या जवाब है? अली असगर का भी कोई जवाब नहीं, अली असगर का भी कोई जवाब नहीं। जैसे सूरह कौसर को सरकार ने चैलेंज के तौर पर पेश किया था, मौला हुसैन ने भी अली असगर को चैलेंज के तौर पर पेश किया था। ये मौजूदा है, सरासर मौजूदा है। इसीलिए मौला कायनात की अजमत को जानने के लिए हमें कुरान की तरफ रुजू करना हो। कुरान अली की मौजूद नुमाई को वाज़े करता है और अली कुरान की मौजूद नुमाई को वाज़े करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का तारुफ कराते हैं। समझने मेरे साथ चल रहे हैं कि यकीनन चल रहे होंगे। अब जरा देखिएगा, मैं कैसे मोड़ पर ला करके बात करने को कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच जाए। कुरान मजीद ने अपने आप को 50 से ज्यादा टाइटल्स दिए। कितने? 50 से ज्यादा टाइटल्स दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। वो किताब ला रैब फीह, इसमें कोई राइब। पहला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काम ये किया कि इसको ला रैब करार दिया। चल रहे मेरे साथ कि नहीं चल रहे? अगर कुरान ला रैब है तो अली भी ला रैब। कुरान कहता हुदल लिल मुत्तकीन, सरकार फरमाते हैं अली इमामुल मुत्तकीन। कुरान ने कहा मैं मजीद हूं, इन्नहु मजीद, किताबुम मजीद। और मौला कायनात के नामों में से एक नाम मजीद है, मजद वाला, अजमत वाला, जलालत वाला। कुरान ने कहा इन्नहु किताबुम मुबीन। क्या किताब है? मुबीन, खुली हुई किताब है। और उसी कुरान ने बताया कोई है कि सारा इल्म उसके अंदर हमने रख दिया, और वो कौन है? इमामुल मुबीन। अगर कुरान किताब मुबीन है तो अली, कहिए, आप भी बोलिए ना, तो आपके बोलने से थोड़ा मुझे भी हौसला मिलता है कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। वरना मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, आप पीछे रह जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको पीछे छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं। चल रहे मेरे साथ ना? किताब मुबीन के मुकाबिल में कौन है? इमाम मुबीन है। मगर दिलचस्प बात यह है कि कुरान मजीद ने अपने लिए एक और नाम भी दिया है जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। कहा ये किताब मुबीन है, इन्नहु किताब मकनून, ढकी हुई किताब भी है। मकनून कहते हैं बंद किताब। कुरान इज ओपन बुक एज वेल एज द क्लोज बुक। कोई बस आप बैठे हुए हैं तो खड़े हुए हैं ना। आपके लिए मैं कहूं कि आप माशाल्लाह एक वक्त में बैठे हुए भी हैं, खड़े हुए भी हैं। आप कहेंगे हम सिर्फ बैठे हुए हैं, आपका दिमाग खराब, ठीक नहीं है आपका दिमाग। तो एक वक्त में एक ही बात हो सकती है। तो ये किताब मुबीन है तो किताब मकनून नहीं होनी चाहिए। और अगर ये किताब मकनून है, कोई बड़ी फलसफा तो नहीं सुना रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल 2+2=4 वाली बात है। वाज़ेह है बहुत ज्यादा। किसी को समझ में नहीं आए तो सलवात पढ़ के दिखाए। माशाल्लाह सब समझ गए। अब सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। तवज्जो चाहता हूं आपकी, पूरी तवज्जो चाहता हूं आपकी, पूरी तवज्जो चाहता हूं आपकी, पूरी तवज्जो कि ये किताब मुबीन भी है, ये किताब मकनून भी है। परवरदिगार तेरी है, तेरा एक ही कलाम है, तेरे एक ही कलाम को तूने दो नाम दिए हैं। खुली हुई किताब भी है, ढकी हुई किताब भी है। कहा हमने किसी को इमाम मुबीन भी तो बनाया है। जरा उसकी तरफ देखते हो, तवज्जो करते हो तो बात समझ में आ जाएगी। अगर तुमने कुरान को उस वारिस कुरान से समझने की कोशिश की तो वो किताब मुबीन है, इसलिए कि वो इमाम मुबीन के समझाया हुआ। और अगर तुमने अली
को छोड़ के किसी और से लेने की कोशिश की, वो किताब ढकी हुई किताब है, खुली हुई नहीं हो। ये किताब खुली हुई भी है, ढकी हुई भी है। अब जरा देखिए कुरान ने अपने लिए क्या अजमत बयान की है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको कोई मस भी नहीं कर सकता। नो वन कैन टच इट, टच द स्क्रिप्ट ऑफ कुरान एक्सेप्ट दोज हु आर प्योरिफाइड। आप बावजूद जब तक नहीं हैं अल्लाह के कलाम के मतन को छू भी नहीं सकते। परवरदिगार तेरा ये कलाम है, अली तो कुरान का हम पल्ला है, उसके बारे में क्या कहा है? यकीनन अगर ज़ाहिरी तहारत कुरान के छूने के लिए है तो बातिनी तहारत जब तक ना हो अली की मोहब्बत किसी के दिल में नहीं जाने वाली। इसीलिए हर कोई अली अली नहीं कर सकता। अगर ये मसला सबके लिए आसान होता तो हुजूर की हदीस आपके सामने रख दूं। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हदीस को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर जमीन पर रहने वाले इंसान, जमीन पर रहने वाले इंसान अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते, लो इज्तमा अन्नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, क्या होता? लमा खलक अल्लाहु अन्नार, जहन्नम को अल्लाह बनाता ही ना, जहन्नम को अल्लाह बनाता ही ना अगर सारे अली की मोहब्बत अपने दिल में रखते। ये मोहब्बत हर किसी के नसीब में थोड़ी है। ये मोहब्बत तो सिर्फ उस दिल के अंदर जाती है कि जिस दिल को तहारत हासिल है, जो पाक व पाकीज़ा है। माँ की तहारत और बाप की हलाल कमाई, ये दो चीजें मिलकर के किसी दिल को इस काबिल बनाते हैं कि वो दिल अली की मोहब्बत का मरकज बन जाए। ये है कुरान और अली के साथ और रिश्ते में। कुरान कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात में कोई इल्म खुश्क व तर का ऐसा नहीं जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। और फिर आगे अल्लाह ने खुद फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, इमाम मुबीन भी वैसे ही है। कोई ऐसा इल्म नहीं जो अली के पास मौजूद ना हो। अगर हर तरह का इल्म कुरान में है तो हर तरह का आलिम कौन है? अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान ने 50 से जायद टाइटल्स अपने आप को दिए हैं। कहा कि ये मजीद है, कहा कि ये करीम है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये करीम है। अगर कुरान करीम है तो मेरा मौला क्या है? करीम इब्न करीम है, बल्कि अजीब करीम है। बाप भी जिसका करीम, खुद भी करीम, जिसका वारिस है वो भी नबी करीम, और जिसकी औलाद जिसके वारिस हो रहे हैं वो भी करीम। कभी हसनैन करीमैन कहते हैं, यानी करीमी का जो सर चश्मा है ऐसा करीम मेरा मौला अली है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं आपकी समाअत के ज़ौक़ को आपकी सलवात से जज करता हूँ, माज़रत के साथ, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपकी सलवात जहाँ ढीली पड़ी मैं समझूंगा कि आपके सुनने का भी अब हौसला कम हो गया है। लिहाजा मैं भी कोशिश करता हूँ कि समेट लूँ बातों को और जल्द से जल्द मजलिस को तमाम करूँ। जहाँ आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी ज़ौक़ समाअत में इजाफा होता जाता है, कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर गुफ्तगू आपके हवाले करें। तैयार हैं आप सब? आपके एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले।
50 से ज़ायद नामों को बयान करने के लिए पूरे एक अशरे की ज़रूरत है। एक मजलिस में हम उन खाली नामों को भी बयान नहीं करते, मगर एक पॉइंट मेरे जहन में आया, वो ये कि अगर कोई भी कुरान के अलावा किताब हो उसमें अपनी ही तारीफ बार बार की जाती हो तो हम क्या उसको वैलिड समझते हैं? नहीं, कहते ये क्या किताब है, खाली अपनी तारीफ करेंगे, है ना। कोई भी शख्स अगर अपनी तारीफ शुरू कर दे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, तो सुनने वाले कहते हैं ये पागल हो गया, ये अपनी तारीफ कर रहा है, वो कोई अच्छी बात तो नहीं है। सेल्फ प्रेजिंग इज नॉट ए गुड थिंग, राइट? सेल्फ प्रेजिंग इज नॉट गुड थिंग। मगर जब हम देखते हैं कुरान को, कुरान अपनी तारीफ कर रहा है, जिस पे कुरान नाजिल हुआ नबी को, तो नबी अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी फजाइल बता रहे हैं, अपनी मंजिलत बता रहे हैं, अपनी तारीफ करते जा रहे हैं। और वही नहीं, मौलाए कायनात की ज़िंदगी में हम देखते हैं मौलाए कायनात खुद अपनी तारीफ शुरू, मैं वो हूँ, मैं इतना बुलंद हूँ कि परिंदे भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मेरी बुलंदी का आलम यह है कि ज़मीन वाले ज़्यादा मुझे नहीं समझते जितना कि आसमान वाले। तारीफ ही है ना, अपनी तारीफ। और खुदा ने भी अपनी तारीफ शुरू कर दी है ना, अपनी तारीफ कुरान मजीद में देखिए अल्लाह ने अपनी तारीफ की है। ये क्या माजरा है कि अगर हम अपनी तारीफ करें तो काबिल मजम्मत, लोग भी हमें नीचा करके देखें, ये क्या हुआ कि अपनी तारीफ कर रहा। सेल्फ प्रेजिंग इज नॉट ए गुड थिंग, राइट? बट यहाँ अल्लाह भी अपनी तारीफ कर रहा, रसूल भी अपनी तारीफ कर रहे, मौला कायनात भी अपनी तारीफ कर रहे, कुरान मजीद भी अपनी तारीफ में खुद व खुद कसीदे पढ़ता चला गया। ये क्या माजरा है? जवाब इसका सिंपल है, हम अगर तारीफ करें तो मजम्मत के काबिल इसलिए हैं कि हम अधूरे हैं। वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, वी आर नॉट परफेक्ट, हम अधूरे हैं, हम नाकिस हैं, हम ऐब रखते हैं, हमारे अंदर कमी है। जो कमी रखे वो कहे मैं मुकम्मल हूं तो वो झूठा है, समझ है कि नहीं है? और झूठ जब भी कोई बोलेगा तो उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, मगर जो काम कामिल है, मुकम्मल है, कमाल की मंजिल पर है, वो अगर अपनी तारीफ ना करे तो लोग उनको नहीं पहचानेंगे। इसलिए अल्लाह भी पहचानवाने के लिए तारीफ करता है, रसूलुल्लाह भी अपनी तारीफ करते हैं, और कुरान भी करता है, और मौला कायनात भी करते हैं। अब आइए वापस, कुरान कहता है, तवज्जो, कुरान कहता है कुरान रहमत है पूरी कायनात के लिए। जैसे रसूल रहमत है, मौला अली की वजूद मुबारक भी रहमत है ना। कुरान कहता है ये मौइज़ा है, यकीनन मेरा मौला भी मौइज़ा है। कुरान कहता है ये तिबियान है, मेरा मौला भी तिबियान है। कुरान कहता है बयान है, हादा बयानुल लिन्नास, कुरान जैसे बयान है वैसे मेरा मौला भी बयान है। मौला की जबान से जो निकले वो बयान। तवज्जो है, पूरी तवज्जो है। कुरान कहता है ये फी है शिफाउन लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शफा कुरान में है। और मेरे मौला को वजूद, पूरे वजूद में शिफा अल्लाह ने रखी है, इतनी कि जो मौला का नाम ले ले उस नाम के अंदर भी अल्लाह ने शिफा रख दी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब मैं अपनी उस मंजिल की तरफ आना चाहता हूँ। आपको मैंने जहमत दी, कुरान से तमस्सुक आप करते हैं तो क्या करते हैं? खाली पढ़ने की हद तक, या कोशिश करते हैं कि उसमें जो आपको गाइडेंस दी गई है उसको हम प्रैक्टिकली अपनाएं। कुरान को इस दौर में कोई भी इग्नोर ना करे, खासकर इस दौर। कुरान तो अब इतना आपके दस्तरस में है, आपकी अवेलेबिलिटी कुरान की इस कदर है कि आपके पास मोबाइल है तो कुरान आपके साथ है। जब चाहें कुरान की आयतों को पढ़ सकते हैं, जब चाहें कुरान की आयतों पर गौर कर सकते हैं, उसकी तफसीर निकाल के पढ़ सकते हैं, उसके माने को समझ सकते हैं, और फिर आपको गाइडेंस मिलती है। कुरान कहता है कुरान नूर है, और मौला अली का वजूद भी नूर है। नूर आपको मिला है तो आपको किसी तारीकी में स्टक नहीं करने देता, आप कभी स्टक नहीं होते। इसीलिए फरमाया कि जिनके पास कुरान हो और अली हो, दोनों हो, वो कभी भी डेड एंड के तरफ नहीं जाते, उनका कभी डेड एंड नहीं होता, उनके पास कोई रास्ता बंद नजर नहीं आता, बल्कि वो जहां से गुजरते हैं उनके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो नूर के साथ होते हैं, रोशनी के साथ जो होते हैं वो कॉन्फिडेंटली
सफ़र को तय करते हैं, और जो अंधेरे में कोशिश करते हैं कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं और हमेशा स्टक रहते हैं। कुरान नूर है, अहले बैत अतहार भी नूर है और अली मुर्तज़ा भी नूर हैं। ये रातें मौला कायनात से मखसूस हैं, कुरान से भी मखसूस हैं, दोनों का ताल्लुक़ भी बहुत गहरा है। मौला कायनात को एक फ़िक्र खाए जा रही थी, आखिरी लम्हे में भी उस फिक्र को मेरे मौला ने बार बार दोहराया है। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान। ए मेरे चाहने वालों, अगर तुम मेरी आज़ादारी के लिए आते हो और मेरी शहादत पर आंसू बहाते हो तो इसका भी ख्याल रखो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन तुम्हारे कुरान के मामले में तुमसे आगे ना हो जाए। ला यस्बिकुकुम गैरुकुम फिल कुरान। कुरान के मामले में तुमको हमेशा आगे रहना है, क्योंकि कुरान मैं हूँ, मैं कुरान हूँ, दोनों हमारे दरमियान में जो ऐसा रिश्ता है। मौला कायनात वसीयत में भी फरमाया हमें क्या करना चाहिए। कोशिश करें सबसे पहले, ये जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें जवानों के लिए, वो भी और बूढ़े। हम जवानों के इसलिए बात करते हैं कि उनसे बहुत सारी उम्मीदों का ताल्लुक जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग हैं, अमल करते हैं तो उनकी कब्र में उनको फ़ायदा होता है, नहीं करते हैं तो माशरे को इतना नुकसान नहीं होता। जवान अगर अमल करते हैं तो माशरे पर भी उनका असर होता है। तवज्जो सुनिएगा, 5 बातें जल्दी जल्दी बता। एक, कुरान के सिलसिले में कोशिश करें कम से कम रोज़ाना 1 पेज, एक सफ़ा उसको ज़रूर पढ़ें। कम से कम रोज़ाना एक आयत पर गौर करें। सफ़ा एक पढ़ लिया आपने, एक आयत पर गौर करें। 3, कुरान मजीद को अपने घर में रखें, नूर है, अपने साथ रखें, नूर है, जहाँ जाए वो कुरान को साथ लेके जाए इसलिए कि वह नूर है। 4 चौथी बात, कुरान मजीद की एक रोज़ाना किसी गाइडेंस पर अमल करने की कोशिश करें। बस कुरान कहते ला तमशी अलल अर्ज़ मरहा फिल अर्ज़ मरहा, जब ज़मीन पर चलो तो अकड़ के मत चलो, इसी बात को उठा लो। जब भी चलो कुरान की आयत को देखो, कुरान कहता है तुम चलो तो फिर अकड़ के ना चलो। मौला कायनात ने भी बहुत सारी आपके हवाले वसीयतें की हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। हम सब सोगवार हैं। मौला कायनात अपनी शहादत का गोया तड़प तड़प कर इंतज़ार करते रहे। आपको मालूम होना चाहिए, खबर मेरे मौला को शहादत की पहले से पहुंच चुकी थी। इसीलिए रिवायत में है कि जब शबे 19 को यानी 19वीं रात को मौला जब उम्र कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर में मेहमान थे तो कभी महराब इबादत में होते थे और कभी सहने खाना में आ जाते थे। आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे कि खुदा की कसम मेरे रसूल ने सच खबर दी थी और वो खबर जो मुझे दी थी उसका वक्त आ रहा है, उसका वक्त बहुत करीब है। और फिर हाथों को उठा करके दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक ली मौती, परवरदिगार मेरे लिए मौत को मुबारक करार दे दे। वो वक्त बहुत करीब महसूस करते जा रहे थे मेरे मौला। और यही वजह है कि वो जब वक्त आया आपने अजान दी, वो अजान पूरे कूफे को हिलाने के लिए नहीं थी बल्कि कायनात को हिलाने के लिए थी कि कायनात का मौला अपनी आखिरी नमाज अदा कर रहा है, जमात की नमाज, और फिर वो भी अल्लाह की तकबीर बुलंद करते हुए। और जब तकबीर बुलंद की है, नमाज शुरू की है, सबने सुना है कि मेरे मौला पे एक ज़रबत कारी वारिद की गई। मेरे मौला ने कहा बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबिलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा, अली कामयाब हो गए। अजीब मेरे मौला की कामयाबी का ऐलान हुआ। अज़ादारों खून से मुसल्ला रंगीन हुआ, मेरे मौला की दाढ़ी खून से रंगीन हो गई। इमाम हसन तशरीफ लाए, मेरे मौला ने नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म दिया और फिर लोग आपको उठा करके सहने खाना की तरफ, बैतुल मुशर्रफ की तरफ ले जाने लगे। मैं यहाँ पर जुमला कहूँगा, उस वक्त दुश्मनों में से जो कातिल था वो भी पकड़ा गया। लोगों ने इब्ने उलजुम को भी पकड़ लिया, पकड़ के पेश किया। मेरे मौला ने आंखें खोली, खून से लहूलुहान है, मगर उसकी तरफ देख करके अजीब तारीख साज सवाल किया, क्या मैं तेरा बुरा इमाम था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा?
अजरुकमान अल्लाह, ऐसा इमाम है हमारा और आपका, हमें फख्र करना चाहिए कि हम उसकी मोहब्बत में दिल रखते हैं। अजीब तवज्जो फरमाइएगा कि मेरे मौला ने जो बाद वाला सवाल किया है ना, अजीब है। क्या तेरा बुरा इमाम था मैं? उसके बाद का क्या मैंने तेरी किसी भी हक तलफी में हिस्सा लिया है? उसने इनकार किया, नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं, आप ना बुरे इमाम थे ना आपने मेरी कोई हक तलफी की है। तो आगे तो फिर मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? जवाब उसका जालिम को पता है कि जिसकी तकदीर में जहन्नम लिखा हो वो क्या कर सकता है? मेरे मौला ने कहा नहीं हरगिज़ ऐसा भी नहीं है, बल्कि तू शकी था, शकी है, और तुम्हारी इस शकावत ने तुझे कातिल बनाया है। अब आगे एक मर्तबा इमाम हसन की तरफ देखते हैं, देख करके कहते हैं काफी डरा हुआ मालूम होता है ये, इसकी रस्सियां भी बहुत ज्यादा कस के बांधी हैं, इसको थोड़ी सी ढील दे दो। वहीं पर मेरा कलेजा तड़प गया। कहा मौला अपने कातिल को जंजीरों में जकड़ा नहीं दे सकते, मगर आइए आपका सज्जाद, हाथों में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, गले में तौक़ीक़ादार है, आपकी बेटी ज़ैनब बाजुओं को रस्सी से बांधा गया है। अज़ादारों सुनेंगे आज अजीब व गरीब बात मेरे मौला ने आगे कही है। कहा ये लगता है प्यासा है, शरबत इसको पिला दो। फिर मेरा दिल तड़प गया, मौला अपने कातिल को भी शरबत आप पिला रहे हैं, करबला में आइए आपके बच्चे हैं। अल्लाह की सदाएं बुलंद है, कोई नहीं जहरा के बच्चों को पानी पिला। मातम मौला या अली या